جی قائمی صاحب، بطور جرنلسٹ میری آبزرویشن یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے یہ ہو رہا ہے اور یہ 5واں سال ہے، لیکن اس دفعہ اس کی آب و تاب اور جوش و فروش اور ولولہ بہت زیادہ ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو اکادمی ادبیات کے صدر ثاقب صاحب، مونس رضا صاحب، اور بالخصوص ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انیل سعید صاحب، اور بالخصوص میونسپل کمیٹی کے صدر آفتاب احمد خان صاحب، جن کی کوششوں اور محنت سے یہ آج میلہ اتنا زبردست آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بالکل نہیں ہے اور فل ہو چکا ہے یہ جو لان ہے اس کا. اور میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ جو اسٹوڈنٹ کا اس دفعہ جو شرکت ہے وہ کمال ہے کہ واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اس دور میں کتابوں کی طرف کھینچ کے لانا یہ بالکل زبردست کام ہے. آثار قدیمہ نے بہترین اور ماہرن اور انہوں نے کسی لے تو دا کتب خانہ میں کھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں سالانہ کتاب میلہ میوزیم کمیٹی اتر کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے. اس میں کم از کم 80 بک سٹال جو ہیں ٹیبل لگائے گئے ہیں اور کم از کم 12,000 بک یہاں لگائی گئی ہیں، اور مختلف علاقوں سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اولڈ بک ڈیپو KPK سے، اور مختلف علاقوں سے، اور ہمارے لوکل جو شاہراہ ادیب ہیں، بک سیلر، انہوں نے اسٹال یہاں لگائے ہیں. اور یہ ڈپٹی کمشنر ٹکراؤ عادل رضا صاحب، انیل سعید صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اور آفتاب احمد خان صاحب، اور اکیڈمی ادویات کے زیر اہتمام اور زیر انتظام میونسپل کمیٹی تک یہ کتاب میلہ لگایا گیا. السلام علیکم، میرا نام سائرہ نقوی ہے. میں در کتاب میلے میں آئی ہوئی ہوں. میونسپل کمیٹی کی طرف سے بہت اچھے ایک کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. آج کل کے دور میں انسان کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں، لیکن کتاب ہمارا بہترین ساتھی ہے. کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. میں سب کو کہوں گی کہ اس ایونٹ میں آئیں، بہت اچھا ماحول ہے اور مختلف کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی کریم خان، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ڈائری ٹی وی نیٹ ورک کے بروئے رواں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا وہ اچھا کر رہے ہیں جس کو ہم اپنے ساتھ انصاف سمجھیں. بدقسمتی سے نفسی کے عالم میں ہم خود کو بھی وقت نہیں دے پاتے. پھر خاص کر کتابوں کے ساتھ جوڑنے کا جو سلسلہ اٹک بلدیہ لا نے شروع کیا ہے، یہ ان کے اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ آپ دیکھنے والوں کے لیے. وہ 5واں میلہ آج کتاب میلہ بلدیہ اٹک میں جاری ہے. میں دیکھتا ہوں جو محبت، جو پیار یہاں مل رہا ہے یہاں کے اسٹارز، یہاں مصنفین کو، یہاں دیکھنے والوں کو، تو وہ اس کا نمبر بدل میں نے اس سے پہلے اٹک شہر میں نہیں دیکھا. اور میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ سب تشریف لائیں. آپ کی دلچسپی سے اس کا وقت مزید بڑھ بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے چھٹا کتاب میلہ 3 دن ہو. بہت شکریہ. جی غلام عباس، تحصیل پریزیڈنٹ، آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن تحصیل اٹک. بہت خوشی ہوئی تھی یہاں پر آ کر، اور اس طرح کے میلے سجنے چاہیے، اور آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے چوں الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے تو بچے کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں، کتاب بینی سے دور ہو گئے ہیں، اور کتاب کا شوق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میلوں میں آئیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام جو پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ سکول ایسوسیشنز ہیں، ان کو انوالو کیے جائیں، اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہاں لا سکے اور بچوں کو یہ یہاں پہ ان چیزوں سے وہ افادیت حاصل کر سکیں. تھینک یو جی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک شراز اسکر، انفارمیشن سیکرٹری ایفسما تحصیل اٹک، آپ سے مخاطب ہوں. ماشاءاللہ آج اس کتاب میلہ میں آئے بہت اچھا لگا، اور اٹک کے رائٹرز کی بہت خوبصورت بکس ہیں، اور جو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہیں. اسکول سے ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کے ہیں، اور بچے بڑا انٹرسٹ اس میں لے رہے ہیں. بکس سے ہماری آنے والی نسل کافی دور ہو چکی ہے اور اسکرین کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے، اور بچوں کو دوبارہ بکس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بکس میں روحانیت ہوتی ہے وہ اسکرین پہ اس طرح سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ اسی طرح کے ایونٹس مزید بھی ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بچوں کو اس طرف اور بڑوں کو واپس ریڈنگ کی طرف لے کے آئیں. بہت شکریہ. نوجوانوں کو کیا آپ پیغام دیں گے کہ وہ موبائل فون سے ہٹ کے تو کتاب پڑھیں، کتاب پڑھیں، اور کتاب نوجوانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری. ایک شعر اپنا سنا دیں، ایک سانس کے لیے. ایک سانس کے لیے کاسا دیے پھر. واہ واہ. ایک سانس کے لیے کاسا دیے.
ऐसे भी हम नहीं हैं तलबदार वाह, ऐसे भी हम नहीं हैं तलबदार रिस्क के। मतलब एक माहौल सा बना हुआ है। एक खूबसूरत सा शेर आपका भी हो जाए। साकिब मेरे हुसैन का ये मौजज़ा भी है, गुल करके एक चिराग 72 जला दिया। ये दो शेर एक गज़ल के कुछ इख्तलाफ बायसे तकरार तो नहीं, यानी तुम्हारी बात से इनकार तो नहीं, लगता है तीर आके निशाने पे जिस तरह, देखो कमीनगाह में कोई यार तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सैयद जवाद हैदर नकवी कामलपुर सैयदान से। और ये किताब मेला जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुंतज़मीन का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। और फिर अकादमी अदबियात के ज़रिए इंतज़ाम जो इत्नाम लगा है वो तो बहुत ही काबिल सताइश है। और स्कूल से भी और कॉलेज से भी यूनिवर्सिटी से भी और हर तबके ज़िंदगी जो है उसके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और एक खूबसूरत माहौल जो है वो इस किताब मेला में नज़र आ रहा है। ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो दिन भी मेरे लिए आ जाए। दुआ है कि अल्लाह पाक उसमें मुझे भी कामयाब करे और आने वाले वक्त में मेरी तसनीफ जो है वो भी यहाँ पे जीनत बने। और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह जनाब, आज की किताब मेले में ये मेरे वालिद मोहतरम की किताब भी मौजूद है, कुलियात किस्मिल। मुझे फ़ख्र है कि उनकी जो मतबूआत थी पढ़ी, मैंने उनको एक जगह इकट्ठा किया और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस किताब मेले में मौजूद है। अटक के शहरियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा एक गिफ्ट है इंतज़ामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, जनाब चीफ ऑफिसर बल्दिया की तरफ से ये किताब मेला आज ऑर्गेनाइज किया है। और लोगों को जोश खरोश नज़र आ रहा है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत अच्छी कावश है आपकी। और मैं देख रही हूँ कि जो दूर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हम जैसे पसमानदा इलाके में ये कावश बहुत अच्छी है। लोग घुटन में मतलब एक घुटन वाले माहौल में थे, आपने एक फ्रेश माहौल फराम किया। और ख़ास तौर पर तलबा और तलबात मैं देख रही हूँ कसीर तादाद में आए हुए हैं। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है और ऐसी काविशें होनी चाहिए। जो डिप्टी कमिश्नर साहब पहला उन्होंने मतलब बहुत अच्छा एक इकदाम उठाया है अटक के पसमानदा इलाके में, जहाँ पे मतलब तफरीह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई पार्क नहीं, कोई ऐसा तफरीह नहीं कि जहाँ हम लोग जा सकें। और ऐसे मुस्बत रवैये और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में हमारी सकाफती हमआंगनी हम लोगों में पैदा हो रही है, एक हमारे रवादारी एक मुस्बत रवैये पैदा हुए हैं। और ये बहुत अच्छी कावश है और मैं समझती हूँ कि होती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे अपने स्थान पर ये मौका दिया है कि मैं मेले के बारे में कुछ गुज़ारिशात कर सकूँ। ये मेरा अपना स्टॉल है, इस पर मेरी बुक्स लगी हुई हैं माशाल्लाह। आज का मेला पहले मेलों की निस्बत माशाल्लाह बहुत रौनक है, बहुत ज़्यादा रश है। लोगों में ये जज्बा पैदा हो चुका है किताब पीने का और लोग शौक तर शौक इस मेले में आकर अपने लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए किताबें खरीदी। मैं जी आज किताब मेले में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। हमारे अटक के लिए ये एक बेहतरीन काविश है। वज़ाइफ अली काज़मी साहब हमारे मोहतरम जो इसके रूए रवान भी हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी मुफीद मालूमाती कुतुब भी मिलती हैं और हमें मोहब्बत रखनी चाहिए किताबों से। जो लोग किताब से मोहब्बत रखते हैं वो इस तरह की तकरीबात में आना बाइस से फ़ख्र महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश है और मैं बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तैनात हूँ। और मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है कि आप अपनी बुक्स की कदर करें, किताबों की कदर करें, पढ़ें। और जब कल आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको इस चीज़ की कदर होगी। जैसे कि आज मैंने कल पढ़ा तो आज मैं एक जगह पर बैठा हूँ, एक जगह पर लगा हूँ, मेरा एक नाम है, मुझे लोग जानते हैं। इसी तरह कल मेरी जगह आप भी हो सकते हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि आप आएँ और जो है ना यहाँ पे विजिट करें और दुनिया के साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की तलबा बात कर रही हूँ। यहाँ पे किताब मेले का जो सबसे अहम मकसद है कि हमारी जो खोई हुई तहजीब है, जो हमारे नौजवान अवाम है वो अपनी तहजीब को भूल चुकी है और ऐसे किताब मेलों की वजह से हम अपनी तहजीब को ढूंढ सकते हैं, दोबारा तलाश कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, आज का नौजवान जो है वो सिर्फ मोबाइल की तरफ माइल है।
सिर्फ मोबाइल में उसने पनाह ढूंढ रही है। लेकिन अगर ऐसे मेले का इनेकाद किए जाते रहे तो नौजवान इसकी तरफ माइल होंगे और बिला आखिर हम अपनी खोई हुई इज्जत, इक़्तिदार और तहजीब वापस पा लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा अक्सर महबूब है। मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में खुद अदब की स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर है मेरा। और हर साल, पिछले साल भी हम आए थे और इस साल भी इस किताब मेले में आकर बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी बुनियाद को, अपने अदब को हम भूल चुके हैं। और जब बच्चे यहाँ आते हैं वो किताबें खरीदते हैं, उससे पहले जो इतने अच्छी तारीख में हमारे जो मुसन्निफ थे, जो अदीब थे, वो कारनामे कर चुके हैं और अपने कलम के जरिए जो वो ये ताकत दिखा चुके हैं। तो ये होना चाहिए, ऐसी ही तकरीब मुकर्रर होनी चाहिए। मैं सर नुसरत बुखारी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने पिछले साल भी हमें बहुत ही एक इज्जत से उन्होंने हमें बहुत दावत दी है यहाँ आने के लिए, और इस साल फिर हमें बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। हम किताबें खरीदते भी हैं और मेरे सर नुसरत बुखारी बहुत अच्छी उस्ताद है, बहुत कुछ सीखने को मिले है उनसे और यहाँ आकर भी बहुत खुशी होती है और दूसरों से बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया और इस तरह की तकरीब होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ कि मैं इस पुरवकार और बहुत आलिशान किताब मेले में शिरकत कर पाया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की किताब है, आपको दीन की चाहिए, अफसाने की चाहिए, गज़ल की, शायरी की, हर मौजू पर आपको यहाँ किताब मौजूद मिलेगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमने दरिया को पूजे में बंद कर दिया है। अल्लाह पाक हम सब को जो कुछ पढ़े या जो कुछ पढ़ाना है इस पर अमल करने की तौफीक दे। मेरा नाम मंसूर है, हम लोग गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक से आए हैं और हम लोग जो है इधर मेले पर आए हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर हर किस्म की किताबें, मतलब कि सीरत नबवी या और इस तरह के मतलब बहुत अच्छे टॉपिक की किताबें मिलती हैं। अगर दूसरे लाइब्रेरी में जाएँ तो वहाँ पर जो है बुक्स जो हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं। इधर आके हमें मतलब हर किस्म के टॉपिक ईजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा उर्दू के जो बड़े शोरा हैं, हम जिसको लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, उनकी किताब अगर हम देखना चाहें तो इधर से हम बआसानी मिल जाती हैं। इस तरह मैं मशकूर अपने जनाब डॉक्टर जमील अजाज साहब का, जिनके काफ़ी से हम लोग इधर आए हैं। इधर आज बहुत अच्छा लगा है। 2-3 किताबें खरीदी हैं। सर नुसरत बुखारी की किताब है, बहुत अच्छी उसमें हमें मालूमात मिलेंगी। इसके अलावा जो है 2-3 बुक्स मैंने ख़रीदी भी हैं, लेकिन वो अब जाके इंशाल्लाह पढ़ूंगा, उसमें बहुत सारी मालूमात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर नूर है। मेरा ताल्लुक BS उर्दू के शोबे से है। मैं आज इस किताब मेले में आया था यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ इंटर होकर हमें नज़्म ज़ब देखने को जो मिला है, नज़्म बहुत अच्छा है और पुरसुकून माहौल है और इस तरह की सरगर्मियाँ अच्छी कारकर्दगी भी करती हैं। इंसान की रूहानी तरबियत में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत सी किताबें मौजूद हैं। इन किताबों में मैंने अपने मोहसिन नुसरत बुखारी साहब की एक किताब खरीदी है और बाकी भी इसके अलावा इंतज़ामिया का रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं अपने दीगर दोस्तों से भी यही बोलूँगा कि वो आएँ, हमारे इसमें अपना सरगर्मियों में हिस्सा लें। ये हमारी ज़रूरत है। इनसे आजकल हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। किताब दोस्त माहौल इस तरह ही पैदा होता है। इस्लाम हकूक अल्लाह और हकूक इबाद की पासदारी का दर्ज देता है। छोटों पर शफकत और बड़ों से मोहब्बत। किताब मेले पर तमाम यहाँ मुसन्निफीन, मुअल्लिफीन, हर शोबे से हज़रात जहाँ मौजूद हैं, तमाम हज़रात को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबके मुस्तक़बिल के लिए, कामयाबी के लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह सब की खैर फरमाए, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले की खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा जहांगीर बुखारी और आज अटक में किताब मेला है, 5वां किताब मेला है। किताब की अहमियत हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो नहीं सकती। अगरचे डिजिटल दौर आ गया है, लेकिन किताब अपनी अहमियत अपनी जगह पर रखती है। कहते हैं कि एक किताब का पढ़ना कई आलमों से मिलने के बराबर होता है। तो किताब से मोहब्बत कीजिए, किताब खरीदिए। आप लोग किताब खरीदेंगे तो लिखने वालों की हौसला अफजाई होगी, वगरना ये डिजिटल मीडिया जो है ये किताब को खा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि खा जाए, लेकिन कम से कम हालात ऐसे हैं जैसे कि अब किताब की तरफ वो तवज्जो नहीं है, तो किताब की तरफ तवज्जो दीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है, इसलिए कि आज हम 5वां किताब मेला मुनक्किद कर रहे हैं और पिछले
4 मेलों के मुकाबले में आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा खुशी का है कि मुझे अब ये पौधा जो हमने 2021 में लगाया था वो आज मुकम्मल तौर पर जवान और फलदार नज़र आ रहा है। स्टॉल्स की तादाद में भी इजाफा हुआ, बुक्स बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आई और जो विजिटर्स थे, और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनिल सईद साहब और इसी तरह हमारी इंजा अब्बासी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा और ख़ास तौर पर हमारे म्यूनसिपल कमेटी के CEO जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारे साथ ताउन किया और यही वजह है कि हमारा ये एक कामयाब मेला मुनक़िद हुआ। मैं आने वाले तमाम जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ से ख़रीदारी की, हमारी हौसला अफजाई की, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपने अकादमी अदबियात के दोस्तों, ख़ास तौर पर साकिब शाहज़ेब जो हमारे सदर हैं और इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी ताहिर असीर और जॉइंट सेक्रेटरी जनाब नुसरत बुखारी साहब, इन सब की अनथक मेहनत थी और उसका नतीजा जो आज हमने देखा, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किताब से मोहब्बत करने वाले लोगों में इस मेले की वजह से इजाफा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि एक छोटे बड़े शहरों में तो पहले भी लगते थे, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, लेकिन अटक में ये हमने इसकी इब्तिदा की 2021 में और फिर आसपास की तहसीलों में, छोटे शहरों में ये मेले मुनक़िद हुए और किताब दोस्ती में इजाफा हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब वज़ाइफ काज़ी अफ़कार साहब का भी कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया और बाकी बहुत से लोगों के साथ और यहाँ पे कवरेज की। मैं तमाम सहाफ़ी और मीडिया जो है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की और इस मेले को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। मैं बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमजा सिद्दीकी है और मैं आज इधर म्यूनसिपल कमेटी अटक में किताब मेले के सिलसिले में एलीट स्कॉलर्स कॉलेज पीपल्स कॉलोनी अटक के तलबा को लेकर यहाँ पर आया हूँ। यकीनन ये जो स्टेप है म्यूनसिपल कमेटी अटक की जानिब से, ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है, स्पेशली आजकल के डिजिटल दौर में जब जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप के साथ अपने आप को एंगेज किए रखते हैं, तो बुक्स से जो है उनकी कह लें कि दूरी हो गई है। तो बुक्स से फिर से दोस्ती बनाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी अटक का ये स्टेप जो है इंतहाई बेहतरीन स्टेप है कि जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स को एक दफा फिर से बुक्स के साथ दोस्ती करने का मौका मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट अटक एक मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। पिशावर से सराइकी से लेकिन जिला भी उन्हीं के साथ लगते हैं, पिशावर से जट से ऊपर से हमारा हजरत का कल्चर की हमारे इधर से ऐसा लगता है पूरी तारीख रखा है हमारा जिला ना कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल और टूरिज्म के एस्पेक्ट से बल्कि अदबी लिहाज से उसका लिहाज से। वंस अगेन मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने सोशल हमारे इस लिहाज से हमने इंशाल्लाह जल्द ही हम अटक के जिम्बारा में एक नेशनल लेवल का मुशायरा अरेंज कर रहे हैं और अकादमी के दोस्तों से भी मुशावरत के बाद जल्द ही रईस खाना मार्केट में भी खवातीन की जो पूरी डेडिकेटेड गवर्नमेंट हम शासन को देंगे जहाँ तो अपने हैंडीक्राफ्ट्स का अपने जो उनका फन है वो उसका इजहार करेंगे। मैं जो लोग जिनमें कुदरत की सलाहियत है वो कोई भी फन से वाबस्ता है वो हमारे जिम्बारा में आए, हम उनको बहुत ही ऑनरेरी लेवल पे उनको मेंबरशिप दें ताकि हमारी अदबी और ये हमारी सकाफती जो सरगर्मियाँ हैं वो प्रमोट हो। तो मेरी से फिर एक तरह मैं राउंड करता हूँ कि जिन लोगों की सलाहियतें हैं वो आए अपने आप को रजिस्टर करवाएं और हम आगे जिम्बारा के बोर्ड से उनकी वो हम लोगों का उन लोगों का जो फंड है वो प्रोवाइड करें। जितने भी लोगों ने इसको हमारे मेले को ना उसका मैं शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब की टीम को और उन तमाम मुअज़्ज़िज़
دوستوں کو جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اس جو کتاب میلہ کا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا ایک تحفہ اٹک کی عوام کے لیے، نوجوان نسل کے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ جو علم کی بات ہے، یہ تو پیغمبرانہ کام ہے، کیونکہ علم ہی بنیادی چیز ہے جو آپ کی نہ صرف شخصیت سازی کرتا ہے بلکہ آپ کے معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بناتا ہے۔ یہی راستے راہ کا تعین کرتا ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کس سمت سے جانا ہے ہماری پوری قوم میں۔ آج پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کا بنیادی نظریات واضح طور پر تشکیل پائیں، ڈیولپ ہوں، اور انہیں پتہ چلے کہ پرامن معاشرے کے لیے، ایک ترقی پسند معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر الوپمنٹ کے کیسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کے ہمارے معاشرے میں، اٹک میں، چونکہ ہم راولپنڈی اور اسلام آباد سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہمارے جو کالج یونیورسٹیز میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں ان کو پہلا پھسلا کر لوگ لے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی شخصیت سازی کرنی ہے، ان کو ذہنی طور پر پختہ کرنا ہے کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔